आज बहुत ही बढ़िया चीज मिली है रिएक्ट करने के लिए। इजराइल ने धमकी दी थी कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ देगा ईरान के ऊपर, और ये एक एक्स सीआईए एनालिस्ट बता रहे हैं। Listen, every president, from when I joined the CIA, and George H.W. Bush had just become president, the Israelis asked us to bomb Iran. Every single president. No matter who the prime minister of Israel happens to be, you gotta bomb Iran. You gotta bomb Iran. You gotta bomb Iran. And every single president said, no, we're not bombing Iran. That was former CIA officer and whistleblower John Kiriakou, revealing that Israel relentlessly pressured the United States to attack Iran for decades and ultimately succeeded by using direct threats to sway Washington. We would never bomb Iran. इसका मतलब सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड अगर कोई यूएस प्रेसिडेंट रहा है तो वो ट्रम्प रहा है, अनलेस देखते हैं व्हाट एल्स ही इज सेइंग। Because our position was that would be the start of World War III. The reason, though, I'm told, that Donald Trump decided to bomb Iran was that the Israelis said, for the first time, if you don't bomb Iran to take out these deep bunkers, we're going to use nuclear weapons. And they had never... क्रेजी। मतलब आप इमेजिन करो अगर ऐसी स्थिति होती तो ईरान फुल फ्लेजेड इजराइल के ऊपर कूद जाता, ठीक है, न्यूक्लियर रेडिएशन वगैरह हो जाती, ईरान फुल फ्लेजेड इजराइल को अटैक करता, इजराइल की हालत पतली होती तो अमेरिका को कूदना पड़ता। ईरान को इतने आसानी से सैक्रिफाइस नहीं कर सकते रशिया चाइना, फिर क्या वो साइलेंटली बैठते ऑन द साइड लाइन? जब न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दिया तो पूरी दुनिया की प्रॉब्लम हो गई भाई। मतलब कितने सुसाइडल पागल टाइप के लोग हैं यार ये, मतलब इनके लिए कोई तो शब्द ही, कोई वर्ड ही नहीं है सफिशिएंट इन लोग के लिए, इजरायलीज के लिए, अगर जो ये बता रहे हैं वो सब सच है तो। मतलब ये पूरी दुनिया को दांव पे लगा देंगे यार, कैसी दुनिया में रह रहे हैं उन्होंने। never threatened that before. And so Trump said, bombing Iran might actually save us from the start of World War III if it keeps the Israelis from using nuclear weapons. So you're telling me that they just admitted to the President of the United States that they have nuclear weapons and we still do not have them in the IAEA treaty? I mean, if Israeli nuclear whistleblowers are to be believed, yeah, they've had them, they started working on them in the 50s. They got them around the late 60s or the early 70s. There are credible reports that when the apartheid regime fell in South Africa, they had nukes and they gave them to the Israelis. According to Kiriakou, नहीं, ये तो आई डोंट थिंक कोई डाउट है कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। सिंपल सर्च करना तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है वो रिपोर्ट करती हैं, ये भी बताते हैं कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स हैं वहां पे। मतलब आप सोचो कितने घटिया किस्म के हैं लोग कि हमारे पास, हमको सब चीज अलाउड है, तुमको कुछ नहीं अलाउड। मतलब इट ऑल बॉइल्स डाउन टू जो इनकी सोच है ना कि हम सुपीरियर हैं बाकी सबसे, हम रख सकते हैं न्यूक्लियर वेपन्स, तुम नहीं रख सकते। पैलेस्टीनियंस को रहना है, हमारे गुलाम बन के रहेंगे, अदरवाइज नहीं रहेंगे। Israeli strikes targeting Iranian nuclear scientists were highly precise, despite Israel's willingness to cause mass collateral damage. The Israeli policy is, if they want to kill you and you're in an apartment block, they'll take the entire city block out and kill 2,000 people if they think they can get you. That's a policy they That's have? a policy. Is it like an attitude that their military has to say, F it, we're going to do whatever we want? it's or is higher it than an the actual military. written like No, policy? it's from the Israeli political leadership. Wow. Yeah. Kiriakou argued हाँ, तो ये तो सही है ना, ये तो आपको प्रैक्टिस में भी दिखता है। उन्होंने ईरान में क्या किया, गाजा में क्या कर रहे हैं, एक आदमी को मारना होता है सबको उड़ा देते हैं। सेम चीज लेबनान में भी करते हैं, तो ये कोई सरप्राइज नहीं है। that criticism of Israel is almost always politically framed as anti-Semitism, a strategy taught through the country's education system. Many Americans have been convinced that if you are anti-Netanyahu, or if you are opposed to the present policies of the current Israeli government, you are anti-Semitic. In fact, an Israeli friend of mine, a close Israeli friend of mine who served in the IDF and everything, told me that they're actually taught to do that at school, that any criticism of Israel, they're supposed to label as anti-Semitic, so that people back off, and people generally do back off. Kiriakou goes on. मतलब कितनी क्रेजी बात है यार ये कि स्कूल में ये सब पढ़ाते हैं, मतलब स्कूल से ही तुमको ऐसा ब्रेन वॉश कर देते हैं। इनफैक्ट हमने एक वीडियो बनाया था इस चीज के बारे में, बहुत सारी चीजें उसमें सामने आई
कि जो पूरी इजरायली जनता है, देखो वो भी पूरी भारी ब्रेन वॉश्ड है। ऐसा नहीं है दे आर अपोज टू द जेनोसाइड, वो तो चाहते ही हैं मारने को। मतलब अरब्स को बताया जाता है, एक तो पैलेस्टीनियंस कुछ नहीं कहते, वो हर चीज अरब्स ही है। अरब्स को मतलब इंसान का दर्जा भी नहीं दिया जाता उनकी टेक्स्ट बुक्स में। ये सब तब कुछ मतलब आई हैव सीन, मतलब कितना सच है कितना नहीं, बट दिखता है उनके पूरे जो जो चीजें वो करते हैं उससे दिखता है। आप कैसे इतने वाइड स्केल पे आप मतलब आप सिस्टमिक आप पूरी पॉलिसीज रखो कि रेप करना है, औरतों का रेप करना है, आदमियों का रेप करना है। मतलब दे आर सिक इन द हेड, खराब लोग हैं ये। कुछ ऐसे मैंने भी वीडियोस देखे हैं, बेन गवीर या कोई जा रहे हैं स्कूल में एंड वो बोलते हैं कि हाँ अरब्स को मर जाना चाहिए। 7-8 साल के बच्चे, और ये सब आप सिखा रहे हो। करप्ट सोसाइटी भाई, करप्ट सोसाइटी। एंड मैं तो इतना भी कहूंगा, जितने भी माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं ऐसे स्कूल में विलिंगली कि हाँ उनको ये सब सिखाया जाएगा, क्या कर रहे हो आप लोग? क्यों ऐसे सोसाइटी का पार्ट बनना चाहते हो? अगर आप उस सोसाइटी के पार्ट हो मतलब आपका दिमाग करप्ट है, मतलब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसा नहीं फंक्शन करता होगा आपका दिमाग। That exposed the CIA's infiltration and control over household electronics, such as TVs, smartphones, and even cars. Another thing that Vault 7 taught us was that the CIA developed the capability to take over your car remotely by hacking into the car's computer system to drive you off a bridge or into a tree. Now, did we discover examples of where this was used? We did not, but the conventional wisdom among the blogosphere is that, you know, we should ask Michael Hastings what happened to him. Whoa. Yeah, Vault 7 also told us that the CIA is able to take over a smart TV to turn the speaker into a microphone so that it broadcasts everything taking place in the room with the TV still off. तो भाई ये तो बहुत क्लियर ही है कि जैसे 9/11 हुआ, उसके ऊपर भी हमने वीडियोस बनाए हैं कि जो भी कहानी बताई जाती है असली में वो है कि नहीं, बहुत मतलब झोलमोल इतना ज्यादा लगता है उसमें। पर जब वो हुआ उसके बाद इन्होंने बोला कि नहीं, अब तो हम सिक्योरिटी और टारगेट करेंगे, हम खतरे में हैं, इसीलिए हमको ये सारी चीजें जो बता रहे हैं कि सीआईए इतना ज्यादा इन्वेड कर सकती है किसी की भी प्राइवेसी के अंदर, वो सब कर सकते हैं वो। तो इस टाइप के इंसिडेंट्स को यूज किया जाता है टू एक्चुअली सर्वेल द पीपल मोर। एंड इनफैक्ट मुझे तो इससे याद आ रहा है, इनफैक्ट याद आया, उस पर रिएक्ट भी करेंगे उस वीडियो पे। वो सॉर्ट ऑफ एआई मेड वीडियो है कि भाई फ्यूचर में कैसे हो सकती है चीजें, कि सर्वेलेंस इतना ज्यादा है कि हर एक चीज आपकी जो भी आप लाइफ में कर रहे हो वो कॉन्स्टेंटली मॉनिटर होती रहती है। एक आपको पॉइंट सिस्टम दे दिया जाता है, और अगर आप कुछ भी मतलब जो आपकी सरकार चाहती है, जो भी बेसिकली हुक्म कर रहे हैं आप लोग के ऊपर, जिनकी हुकूमत चल रही है, उनके खिलाफ कुछ भी कर दो तो आपके पॉइंट्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो आपको खाना तक नहीं मिल सकता, ऐसा भी हो सकता है, सीधे सीधे आपके खाते से बैंक बैलेंस भी डिडक्ट हो जाएगा। इस तरफ पहुंच सकती है जिंदगी, मतलब क्रेजी यार। चलो आज के लिए इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट वन।